Assalamualaikum. Today's topic is series resonance. Before going to discuss what is series resonance, you must know what is resonance. Resonance is the condition at which inductive reactance of the circuit is equal to the capacitive reactance. Or in other words, we can say imaginary part of the function is equal to 0. How to define resonance? Resonance is the condition at which inductive reactance is equal to the capacitive reactance. Or in other words, imaginary part of the function is equal to 0. Number 2 point, resonance occurs due to the oscillation. How oscillation? Why oscillation? Due to the stored energy between inductor and the capacitor. So this is the definition of resonance. How to define only resonance? Resonance basically a condition at which XL equal to XC, or XL and XC are the imaginary part of the circuit. That's why we can say imaginary part of the function or a circuit is equal to 0. And why resonance occur? Because of the oscillations. And oscillations occur due to the stored energy is passed from inductor to the capacitor. Inductor and capacitor are the storing element. They stored energy, and when stored energy, due to this stored energy, oscillations are created. Due to this oscillation, we can observe the resonance condition. We can observe the value of inductive reactance that is equal to the capacitive reactance. But topic is series resonance. What does it mean? Series resonance means we can say resonance in a series circuit simply. And which series circuit at which we have to observe the resonance condition means XL equal to XC. That's why we consider not only resistance but also inductor and capacitor. So series resonance कहें या resonance in a series RLC circuit. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है रेजोनेंस की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि रेजोनेंस है क्या. रेजोनेंस बेसिकली कंडीशन होती है, और वो कौन सी कंडीशन जिसपे आप सीरीज सर्किट कंसीडर करें या पैरेलल सर्किट कंसीडर करें जिसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सर्किट is equal to 0. और इमेजिनरी पार्ट कब 0 होगा? जब XL मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू द XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस. जब XL इक्वल टू XC लिखें या XL माइनस XC लिखें, that is equal to 0. मींस if XL equal to 5 ohm then XC must be the 5 ohm, और 5 ohm से माइनस करेंगे 5 ohm then that is equal to 0. So we have in AC circuit we have a frequency, so we can calculate different values of XL and XC, but at the value at which XL equal to XC we can observe the resonance condition. So how to define in a series RLC circuit? You have to observe the resonance. Then how to define further? एक तो मैंने आपको ये बताया कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया. दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. और वो रेजोनेंस क्यों होता है? बेसिकली ड्यू टू द एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स. जब एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होंगे तो फिर क्या होगा? ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी. मींस इंडक्टर की जो एनर्जी है वो कैपेसिटर के पास जाएगी, कैपेसिटर की इंडक्टर के पास. देयर इज ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन की वजह से एक ऐसी वैल्यू आएगी इंडक्टर की, इंडक्टिव रिएक्टेंस की, जो कि इक्वल होगी XC के. और जब दोनों इक्वल होंगे तो मींस डेटा आर इक्वल टू 0, देन वी कैन ऑब्जर्व द रेजोनेंस. इंडक्टर है, कैपेसिटर है, उनकी रिएक्टेंस 0 हो जाएगी तो ये तो कंपोनेंट 0 हो जाएंगे. जस्ट हमारे पास बचेगा रेजिस्टर. सो वी कैन से रेजिस्टिव सर्किट. सो रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज. सीरीज रेजोनेंस में जब करंट इन फेज होता है वोल्टेज के, और वो क्यों इन फेज होता है? क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन यही है कि इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0. इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, हमारे पास जस्ट रेजिस्टिव एलिमेंट बचा. दैट्स व्हाई वी कैन से इन अ सीरीज रेजोनेंस करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज. and current is 0, then that circuit is said to be in a series resonance. So first the definition of resonance. और अगर resonance को define करना है ना RLC series circuit में तो उसकी क्या definitions हैं? इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इक्वल होगा, वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे, और एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इक्वल टू 0. नाउ द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस अकर इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इन एसी सर्किट वी हैव अ फ्रीक्वेंसी. सो उस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जिसपे ये रेजोनेंट कंडीशन होगी उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. पर एक्सएल किसके इक्वल है? 2πf. एंड एक्सी का क्या फार्मूला हमने ड्राइव किया था? 1/2πf. फॉर मीन्स के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द 1/2π रेडिकल या अंडर रूट LC. एंड हर्ट्ज मीन्स के यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. ओके, सो एट द रेजोनेंस XL माइनस XC इक्वल टू 0 और XL इक्वल टू XC. इन रेक्टेंगुलर फॉर्म रेजोनेंट इम्पीडेंस इक्वल टू ओनली रेजिस्टेंस, एंड इन पोलर फॉर्म में भी यही होगा. ठीक है, जनरल फार्मूला फॉर इम्पीडेंस √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. देन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ XL माइनस XC इक्वल टू 0, या XL जहाँ पर XC लिखा है वहाँ पर XC पुट कर लें तो 0 हो जाएगा. देन यू गेट दिस इम्पीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस.
और इम्पीडेंस पे यहाँ पर स्मॉल r लिखा है, that shows the resonance, means impedance at the resonance condition that is equal to the resistance। ना अगर हम ये रेजोनेंस कंडीशन पे हम ये तो कंडीशन अप्लाई करें, ये नहीं है कि अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें इम्पीडेंस नहीं मिलेगी। इम्पीडेंस का दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर इम्पीडेंस। हम अप्लाई करें कंडीशन के बाद इम्पीडेंस का फार्मूला फाइंड करें कि इम्पीडेंस इन ए सीरीज आरएलसी रेजोनेंस कंडीशन में क्या है, वो हमने यहाँ पर फाइंड किया है। लेकिन जब एक टर्म हम यहाँ से एलिमिनेट करें तो देयर विल बी ए मिनिमम इम्पीडेंस। अगर ये टर्म होता तो हमें ज़्यादा इम्पीडेंस मिलती, लेकिन ये टर्म जो है वो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ज़ीरो के इक्वल हैं। जस्ट जो भी आ रहे हैं 5 ओम में या 6 ओम में, उसके इम्पीडेंस भी उसके इक्वल है। एट द सीरीज रेजोनेंस कंडीशन इम्पीडेंस इज मिनिमम। ठीक है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड इम्पीडेंस by using Ohm's law. So we can say if the impedance is minimum in the series resonance, then current will be maximum. तो करंट के लिए क्या कंक्लूजन पॉइंट होगी? करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज रेजोनेंस कंडीशन। द करंट गिवन इज, पहले करंट का फार्मूला लिखेंगे, करंट इक्वल टू V डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, और यहाँ पर इम्पीडेंस जो है दैट इज द रेजोनेंस इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू R। सो एट द रेजोनेंस कंडीशन as the impedance of a circuit is minimum, the current in the circuit is maximum. ठीक है, सो इन सीरीज रेजोनेंस जो हमने पढ़ा उसमें रेजोनेंस क्या है और सीरीज है, तो मीन सीरीज सर्किट कंसीडर करें, आरएलसी सीरीज सर्किट। और फिर उस आरएलसी सीरीज सर्किट में आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसपे रेजोनेंस कंडीशन अकर होती है, इम्पीडेंस फाइंड करना है एंड देन करंट। और फिर यहाँ पर लिखना है कि इम्पीडेंस जो हमने फाइंड किए हैं मिनिमम में या मैक्सिमम में, करंट जो हमने फाइंड किया है मिनिमम में या मैक्सिमम में। अगर इम्पीडेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, मीन्स मोर करंट, वी विल गेट मैक्सिमम करंट। लेकिन यहाँ पर इम्पीडेंस मिनिमम में, देन इट एक्सेप्ट्स द मोर करंट, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज नोन एज द एक्सेप्टर सर्किट। सेकंड पॉइंट, सो एक तो रेजिस्टिव सर्किट है, दूसरा करंट जो है मैक्सिमम में, देन वी कैन गेट मोर पावर। ठीक है, बट एक्सेप्टर का जो मेन रीजन है दैट इज द करंट, इट एक्सेप्ट्स मोर करंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्सेप्टर सर्किट। और अगर XC लेस देन है XL के या XL इज ग्रेटर देन XC, देन व्हेन XC इन RLC सीरीज सर्किट, ठीक है, सर्किट हमारा वही है RLC सीरीज सर्किट, बट व्हेन XC इज ग्रेटर देन XL, देन सर्किट इज कैपेसिटिव, we can say circuit is capacitive. Or when the XL greater than XC, then circuit is said to be inductive. Resonance condition पे there will be a resistive circuit. वेवफॉर्म याद है आपको? अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो उसके लिए कैसी वेवफॉर्म बनेगी और इंडक्टिव के लिए कौन सी बनेगी? ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको डायरेक्टली ये कंडीशन दी XC ग्रेटर देन होगा XL के, तो सर्किट कौन सा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एट लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कंडीशन ये होगी, और फिर सर्किट तो आपको पता है कैपेसिटिव होगा, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। एट लो फ्रीक्वेंसीज XC is very high. If XC very high, then we can say XC must be greater than XL. Then the circuit is said to be capacitive. And another point, this gives the circuit a leading power factor. At high frequencies, the series circuit is said to be inductive because there is a direct relationship between XL and frequency. If frequency is high, then XL will be high, then circuit is said to be inductive. And the high value of current as resonance produces a very high value of voltage across the inductor and capacitor, because current is maximum in the series resonance, so it produces a high voltage, means high we can obtain the high values of voltage across inductor and the capacitor. तो वेवफॉर्म में बताएं कि यहाँ इन फेज कौन से हैं, आउट ऑफ फेज कौन से हैं। आउट ऑफ फेज मीन्स लेगिंग और लीडिंग। फ्रीक्वेंसी पे क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कौन सी वेवफॉर्म बनेगी। लो फ्रीक्वेंसी मीन्स बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और अबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स इंडक्टिव सर्किट। तो इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज लीड्स टू करंट, तो वो वेवफॉर्म बनेगी। और एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कौन सी बनेगी, जहाँ रेजिस्टिव की, जहाँ पर वोल्टेज और करंट आर इन फेज। ओके, चेक दिस वेवफॉर्म्स। Below resonant frequency means capacitive circuit in which current leads to voltage. At resonant frequency, current is in phase with the voltage. Both waveforms start from the
same point, and above resonant frequency there will be inductive circuit, so voltage leads to current. ठीक है, ये वेव फॉर्म आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, और अगर आपको लीडिंग और लेगिंग का कंसेप्ट पता हो तो ठीक है। लेगिंग की क्या डेफिनेशन होती है, लीडिंग की क्या डेफिनेशन होती है, कि विच क्वांटिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट, जो डेफिनेशन है क्वांटिटी वेवफॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम द बिफोर द सेकंड वेवफॉर्म। एक वेवफॉर्म जो स्टार्ट हो बिफोर द सेकंड वेवफॉर्म, दैट इज द लीडिंग क्वांटिटी। यहाँ पर देखें करंट जो है बिफोर वोल्टेज है, तो दिस इज द लीडिंग क्वांटिटी एंड दिस इज द लेगिंग क्वांटिटी। सेम तरीके से बिफोर जो है वोल्टेज है, आफ्टर जो है वो करंट है, तो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज जो है वो लीडिंग है। और कुछ स्टूडेंट्स ने दूसरे तरीके से वेवफॉर्म बनाई है, वो भी सही है, जिन्होंने यहाँ अगर ओरिजिन से सपोज एक वेवफॉर्म स्टार्ट हो रही है और दूसरी वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट हो रही है डेट इज द लीडिंग, जो यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, बाकी ये इन फेज और लीडिंग लेगिंग का आपने पढ़ लिया था, तो ज़्यादा अगर कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। मैंने जस्ट एक मेथड से यहाँ पर वेवफॉर्म रिप्रेजेंट किए हैं, जो उनकी जनरल डेफिनेशन है, वेवफॉर्म विच स्टार्ट्स बिफोर द अदर वेवफॉर्म दैट इज द लीडिंग, और यहाँ पर लीडिंग शो हो रही है करंट, एंड यहाँ पर एक वोल्टेज, और बोथ वेवफॉर्म स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, मींस दे आर इन फेज। और यहाँ पर भी सेम है, जैसे इसको ही आप यहाँ पर करंट कर लें, यहाँ पर वोल्टेज, तब भी ये सेम हो जाएगा। इन अदर पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि फेज एंगल इज पॉजिटिव फॉर विच फ्रीक्वेंसीज एंड नेगेटिव फॉर विच फ्रीक्वेंसीज। फेज एंगल इज पॉजिटिव फॉर फ्रीक्वेंसीज अबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अबव द रेजोनेंट मीन्स XL ग्रेटर देन XC, तो यहाँ पर क्या है, फेज एंगल जो है पॉजिटिव है, और जहाँ पर XC ग्रेटर देन XL है वहाँ पर एंगल क्या है, नेगेटिव है। और आपको पता है कि XC जो है वो नेगेटिव होता है, एंगल जो होती है -90 होती है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन हमेशा शो करते हैं। तो जहाँ पर XC ग्रेटर देन होगा XL के, वहाँ पर जो एंगल्स मिलेगी हमें वो क्या मिलेंगी, नेगेटिव मिलेंगी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस हम पॉजिटिव J लिखते हैं, मीन्स यहाँ पर जो एंगल्स मिलेंगी, जो भी रेंज मिलेगी, वो दिस आर द पॉजिटिव। Don't forget to click subscribe to get more updates.